محترم ناظرین آداب، روشنی ٹی وی خبرنامے میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ جس وقت بھی صبح کو یا شام کو اپنے گھر سے نکل کر مسجد کی طرف جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی مہمانی کا سامان تیار کرواتے ہیں، وہ جتنی مرتبہ بھی صبح یا شام کو جائے۔ آغاز کرنے سے قبل نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر۔ دیوس ورلڈ اکنامک فورم میں شرکت کرنے کے لیے تیلگو ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ ہوئے روانہ۔ سوئٹزرلینڈ میں واقع زیورچ ایئرپورٹ میں اے پی سی ایم چندرا بابو نائیڈو و تلنگانہ سی ایم ریونت ریڈی نے کی ملاقات۔ بالکنڈہ کے قبرستان اراضی پر شرپسندوں کی جانب سے کی گئی شرانگیزی، مسلمانوں کی جانب سے کیا گیا پرزور احتجاج۔ مجلسی قائدین نے اے سی پی سے ملاقات کرتے ہوئے کی نمائندگی۔ ریاست میں کام کرنے والے کارکنان کی ترقی کے لیے اس وقت کے وزیر اعلیٰ KCR نے کافی کوشش کی۔ حیدرآباد میں واقع تلنگانہ بھون میں BRS لیبر سیکشن کیلنڈر کی نقاب کشائی۔ BRS ورکنگ پریزیڈنٹ KTR کا خطاب۔ ہلدی بورڈ ضلع میں قیام کیا جانا ملک کے لیے قابل فخر ہونے کا۔ نظام آباد BJP دفتر میں قیام عمل میں لائے گئے میڈیا اجلاس سے BJP قانون ساز اسمبلی قائد LET مہیشور ریڈی نے کیا اظہار۔ حکومت کی جانب سے باوقار طریقے سے روح عمل میں لائے جانے والے 4 نئے اسکیمات مستحقین تک پہنچائے۔ چندور، اکبر نگر، رودرور دیہاتوں میں فیلڈ سطح پر جاری کاموں کے طریقہ کار کا کلکٹر راجیو گاندھی ہنومنتو نے لیا جائزہ۔ CMRF کلیانہ لکشمی و شادی مبارک اسکیمات غریب عوام کے لیے تحفہ۔ نظام آباد رورل MLA کیمپ دفتر میں جکران پلی منڈل کے مستحقین کو رورل MLA ڈاکٹر بھوپتی ریڈی نے چیکوں کو کیا حوالے۔ پرجاوانی کے تحت موصول ہونے والے درخواستوں کو اس سے متعلقہ عہدیداران جائزہ لیتے ہوئے حل کرے۔ کاماریڈی میں منعقدہ پرجاوانی پروگرام میں کلکٹر آشیش سنگوان نے احکامات کیے جاری۔ آئین ہند کے 75 سال کی تکمیل۔ تلنگانہ جاگرتی اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی جانب سے 26 جنوری کو سیمینار۔ رکن قانون ساز کونسل BRS کلوا کنٹلا کویتا کلیدی خطبہ دیں گی۔ آئین ہند کے 75 سال کی تکمیل کے پرمسرت موقع پر تلنگانہ جاگرتی اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے زیر اہتمام 26 جنوری کو حیدرآباد کے تلنگانہ سرسوتا پریشد میں ایک سیمینار کا انعقاد عمل میں آئے گا۔ سیمینار میں صدر تلنگانہ جاگرتی و رکن قانون ساز کونسل BRS کلوا کنٹلا کویتا کلیدی خطبہ دیں گی۔ اس سیمینار کے انعقاد کا منشا و مقصد آئین کا نفاذ، چیلنجز اور موجودہ دور میں اس کی اہمیت، وفادیت پر بامعنی مکالمہ کو فروغ دینا ہے۔ سیمینار میں مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے ریسرچ اسکالرز، قائدین اور طلباء شرکت کریں گے۔ آج سیمینار کے پوسٹرز کا بعنوان گنتنترا بھارت جاگروتا بھارت کی اجرائی عمل میں لائی گئی۔ تلنگانہ جاگرتی کی قیادت میں آئین کے بنیادی اصولوں کو دوبارہ سمجھنے کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ علاوہ ازیں آئین کے فوائد تمام شہریوں بالخصوص پسماندہ طبقات تک پہنچانے کے لیے اجتماعی کوششوں کو ناگزیر قرار دیا گیا۔ یہ سیمینار مختلف مکتب فکر کے افراد کو ایک پلیٹ فارم فراہم کرے گا تاکہ وہ آئین کے تحت دیے گئے حقوق کے نفاذ میں موجودہ چیلنجز، آئینی اقدار کی برقراری میں عدلیہ کے کردار، خواتین و اقلیتی گروپوں کو ان کے حقوق کے حصول میں درپیش مسائل پر تبادلہ خیال کر سکے۔ علاوہ ازیں سیمینار میں جمہوریت کے استحکام اور شفافیت کے لیے ضروری اصلاحات، انتخابات اور آئینی جمہوریت، موجودہ حکومتوں کا آئینی اقدار کے تئیں رویہ اور ذات پات کی مردم شماری، اس کے اثرات جیسے اہم موضوعات پر گفتگو ہوگی۔ تلنگانہ جاگرتی اسٹوڈنٹ فیڈریشن نے طلباء، ریسرچ اسکالرز اور آئینی ماہرین سے اس اہمیت کے حامل پروگرام میں شرکت کی درخواست کی ہے۔ اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ عام قبرستان بالکنڈہ میں ملبہ ڈال کر پوجا پاٹ کے ذریعے شرپسندی، مقامی مسلمانوں کا احتجاج۔ مجلسی قائدین کی ASP سے
नुमाइंदगी पुलिस ने मलबे को हटा दिया। निजामाबाद जिले के अवाम कब्रस्तान बालकुंडा में संगम इमारत को मुनहदिम करने के बाद मलबे और मूर्तियों की सुतूनों को फेंक दिया गया था। आज बाद शरपसंद अनासिर की जानिब से मूर्तियों को नस्ब करते हुए पूजा पाठ करने के वाक़े पर मुकामी मुसलमानों ने एतराज़ करते हुए एहतजाज किया और बालकुंडा पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। सर्कल इंस्पेक्टर बालकुंडा श्रीधर रेड्डी, सब इंस्पेक्टर नरेश ने मुकाम वाक़े पर पहुंचकर मुआयना किया। इस वाक़े की इत्तला पर सदर जिला मजलिस मोहम्मद फयाजुद्दीन, सदर टाउन मजलिस निजामाबाद मोहम्मद शकील अहमद फाजिल, साबिका डिप्टी मेयर मीर मजाज अली, मोहतमद टाउन मजलिस मोहम्मद शहबाज अहमद, इब्तदाई सदर आरमूर मोहम्मद जहीर अली, इब्तदाई सदर बालकुंडा मोहम्मद अतीक, मोहतमद बालकुंडा शेख वाजिद, शरीक मोहतमद सैयद रेहान, मोहतमद आरमूर मोहम्मद खालिक के अलावा अरशद पाशा, अमर फारूक, समीर बलाला ने असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस आरमूर वेंकटेश्वर रेड्डी से तहरीरी नुमाइंदगी की और बताया कि बास शर पसंद अनासिर की जानिब से 6 माह कबल एक तबकाती संगम की इमारत को मुनहदिम करने के बाद मूर्तियों वाली सुतूनों पर मुश्तमिल मलबे को आम कब्रस्तान बालकुंडा में पानी की टांकी के पास डाल दिया गया और आज अशरार की जानिब से कब्रस्तान अराजी में इन मूर्तियों की पूजा पाठ शुरू कर दी गई। इन्होंने इस मलबे को फौरी हटाने और आम कब्रस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के जरिए अशरार के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया। ASP आरमूर ने वफद को तयक़ुन दिया कि इस खुसूस में इक़दामात किए जाएंगे। बाद अज़ा इंचार्ज पुलिस कमिश्नर सिंधु शर्मा की हिदायत पर पुलिस अहदेदारों ने वाक़े की तहक़ीक़ात के जरिए कब्रस्तान से मलबे को हटा दिया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से हर साल की तरह रवा साल भी सईदाबाद आरमूर में जमात दहुम के तुलबा के लिए स्टडी बुक्स व मॉडल पेपर्स की गई तकसीम बाहैसियत मेहमान खुसूसी रुकन असम्बली याकूतपुरा हैदराबाद जाफर हुसैन मेराज ने की शिरकत। उर्दू घर शादी खाना सईदाबाद आरमूर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आरमूर की जानिब से 10वीं जमात के तुलबा व तालिबात में सालारे मिल्लत मॉडल पेपर सीरीज मुफ्त बुक्स तकसीम का इनेकाद अमल में आया, जिसमें मेहमान खुसूसी रुकन असम्बली याकूतपुरा हैदराबाद जनाब जाफर हुसैन मेराज साहब और साबिका डिप्टी मेयर मीर मजाज अली साहब, जिला सदर मजलिस मोहम्मद फयाजुद्दीन, टाउन सदर शकील अहमद फाजिल, अरफा व दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर जनाब जाफर हुसैन मेराज साहब ने कहा कि नकीब मिल्लत अलहाज जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब, रुकन असम्बली चंद्रायन गुट्टा की हिदायत पर आरमूर का दौरा किया। इन्होंने तुलबा व तालिबात से मुखातिबत में कहा, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नकीब मिल्लत अलहाज जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की खास क़यादत में हमेशा से यही सोच रही है कि अपनी कौम तालीम में किस तरीके से एजुकेशन में तरक्की करे और आगे बढ़े। साथ ही साथ उर्दू को दूसरी सरकारी जुबान तरजीह देने पिछली हुकूमत की तेलंगाना असम्बली में जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने उर्दू के साथ इंसाफ करने के लिए आवाज उठाई। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी कामयाब रही और उर्दू जबान को दूसरी सरकारी जबान का मौक़िफ़ हासिल है। इन्होंने तुलबा व तालिबात को ऑल इन वन गाइड का मुताला करते हुए आला निशानात के जरिए कामयाबी हासिल करने की तरकीब दी। इस प्रोग्राम से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आरमूर यूनिट सदर वो इंचार्ज काउंसलर मोहम्मद जहीर अली ने कहा कि हमेशा की तरह इस साल भी उर्दू मीडियम के तुलबा व तालिबात में सालारे मिल्लत मॉडल पेपर सीरीज मुफ्त बुक्स की तकसीम अमल में लाई जा रही है ताकि तुलबा व तालिबात इससे इस्तेफादा हासिल करे और सालारे मिल्लत का यही ख्वाब था कि अपनी कौम व मिल्लत तालीमी मैदान में आगे बढ़े और तरक्की करे। इन्होंने तुलबा व तालिबात से ख्वाहिश की कि दिलचस्पी से तालीम हासिल करे, अपने स्कूल और असातिज़ा वालिदैन का नाम रोशन करने का मशवरा दिया। कबल अज़ीम मेहमानों की शालपोशी व गुलपोशी के जरिए तहनीत पेश की। इस प्रोग्राम में मोहतमद अब्दुल खालिद, मोहम्मद जावेद, आबिदुल्ला, इलियास, निजामुद्दीन, समीर बलाला, मतीन, सलमान, असातिज़ा और तुलबा की कसीर तादाद मौजूद थी। दरख्वास्त है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप इस गाइड के जरिए आप अपने पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, अपने टीचर को बताइए या अगर कोई और जिम्मेदार है जो अच्छे से करेक्शन कर सकता है कराइए, जहाँ पे भी गलती है उसको दुरुस्त करते हुए। टाइम वक्त कम है, अगर इंशाअल्लाह ताला अगर इस अंदाज से अगर आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर हल कर लेंगे तो मैं समझता हूँ जैसा कि ज़हीर साहब बोले कि वो दिन दूर नहीं है। आरमूर का नाम बेशक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फज़ल करम से अगर यहाँ पर आज उर्दू मीडियम के जो बच्चे और बच्चियाँ हैं अगर इन लोग लिख रहे हैं तो डिस्टिनेशन से कोई कम नहीं रहेगा, अल्लाह के करम से फर्स्ट क्लास मिनिमम तो आएगा। बालकुंडा हल्के कांग्रेस पार्टी इंचार्ज मुतियाला सुनील कुमार की काविशों के सबब रीढ़ की हड्डी की तिब्बी इमदाद के लिए दरकार अखराजात के तौर पर 2,50,000 रुपये का LOC एरगटला मंडल
तड़पाकल देहात साकिन मोहम्मद शरीफ को किया हवाले। एरगटला मंडल तड़पाकल देहात से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद शरीफ सन ऑफ मोहम्मद रफ़ी गुज़िश्ता कुछ अरसे से रीढ़ की हड्डी की तकलीफ में मुब्तला होने के बायस हैदराबाद में वाक़े नीम्स हॉस्पिटल में शरीक तिब्बी अमले ने मुतासिरा शख्स का तिब्बी मुआयना करते हुए इन्हें ऑपरेशन करना निहायत ज़रूरी होने की ताकीद की। ताहम ऑपरेशन के लिए ज़्यादा रकम होने के बायस इन्होंने तिब्बी इमदाद के लिए दरकार अखराजात के लिए बालकुंडा हल्के कांग्रेस पार्टी इंचार्ज मुतियला सुनील कुमार से राब्ता पैदा करने के फौरी बाद उन्होंने सीएम रिलीफ फंड स्कीम के जरिए 2,50,000 रुपये का LOC हवाले किया, जिस पर मुस्तहिक के अफराद खानदान की जानिब से बालकुंडा हल्के कांग्रेस पार्टी इंचार्ज मुतियला सुनील कुमार को इजहार तशक्कुर किया। डोनकेश्वर में इनेकाद अमल में लाए गए वॉलीबॉल टूर्नामेंट को मुस्बित रद्द-ए-अमल हासिल हुआ। डोनकेश्वर में इनेकाद अमल में लाए गए वॉलीबॉल टूर्नामेंट को मुस्बित रद्द-ए-अमल हासिल हुआ, जिसमें डोनकेश्वर के अलावा नंदीपेट मंडल से 13 देहातों से ताल्लुक रखने वाले टीमों ने हिस्सा लेते हुए फुटबॉल टूर्नामेंट में शिरकत की। इस टूर्नामेंट में डोनकेश्वर टीम को पहला इनाम हासिल हुआ और दत्तापुर की टीम को दूसरा इनाम हासिल हुआ। इस प्रोग्राम में PUC चेयरमैन भरत राज, साबिका MPTC श्रीकांत, डोनकेश्वर कांग्रेस पार्टी कायद भूमेश रेड्डी के अलावा मुस्लिम कमेटी जनरल सेक्रेटरी अकबर, निजामाबाद कांग्रेस पार्टी जनरल सेक्रेटरी सुमन, हैमत मुनव्वर की जानिब से स्पॉन्सर्स किया गया। इस प्रोग्राम में बाहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करने वाले नंदीपेट SI चिरंजीवी के हाथों इनेकाद अमल में लाए गए खेलों के मुकाबले जात में कामयाबी हासिल करने वाले फातिहीन को इनामात हवाले किए गए। बादशाह नंदीपेट SI चिरंजीवी ने खिताब करते हुए कहा कि नौजवानों को तमाम शोबों में महारत हासिल करने की ताकीद की और तालीम के साथ साथ खेल कूद में हिस्सा लेने से जिस्मानी ताकत के अलावा ज़हनी राहत हासिल होती है। इसलिए हर एक तालिब इल्म तालीम के साथ कुछ वक्त खेल के लिए निकालते हुए अपने पोशीदा सलाहियतों को उभारने की ताकीद की। इन्होंने कहा कि इस तरह प्रोग्राम में नौजवान हिस्सा लेते हुए बाशऊर होने की ताकीद की। इन्होंने नौजवानों को मुस्तकबिल संवारने के लिए मेहनत, सच्ची लगन व जुस्तजू से काम करे तो ही मुस्तकबिल रोशन हो सकता है। तुलबा अपनी पोशीदा सलाहियतों को फरोग देते हुए इसके मुताबिक अपनी तरबियत को ढाले और कौम व मुल्क के लिए एक असासा साबित हो और अपने वालिदैन की खिदमत और इनकी इज्जत व एहतराम करते हुए अपने निशाने को मुकम्मिल करने के लिए मुतहरिक हो जाए तो कामयाबी आपके साथ होगी। इन्होंने मजीद कहा कि मौजूदा दौर मुसाबिकत का है, इसलिए इस दौर से खुद हम आहंगी करने के लिए खुद की तरबियत पर तवज्जो मरकूज करे और शख्सी इर्तिका को परवान चढ़ाने के लिए संजीदा हो जाए, क्योंकि तुलबा किसी भी मुल्क व कौम के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह होते हैं। इन्होंने नौजवानों को मंशियात की लत में मुब्तला न होकर नशेवार अशिया से गुरेज करते हुए तुलबा अपने मुस्तकबिल को ताबनाक बनाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में गाँव के बुजुर्गों के अलावा मौजे के नौजवानों की कसीर तादाद ने शिरकत की। చెప్పడం జరిగిందంటే మొన్న 2024 సంవత్సరం మొన్న అయిపోయింది మనకు। ఆ సంవత్సరంలో 2023 2022 కంటే ఒక డబుల్ రోడ్ యాక్సిడెంట్లు అవి చనిపోవడం జరిగింది। అంటే సుమారు ప్రతి సంవత్సరం రోడ్ యాక్సిడెంట్ల వల్ల ఒక 5 లక్షల మంది చనిపోతున్నారు। అన్ని భారతదేశం మొత్తం లెక్క చేస్తే ఎన్ని రోడ్ యాక్సిడెంట్లు ఎంతమంది చనిపోయారంటే సుమారు 5 లక్షల మంది చనిపోతున్నారు। ఈ 5 లక్షల మందిలో 90% యూత్ పిల్లలే ఉంటున్నారు। 90% యూత్ పిల్లలే ఉంటున్నారు। అందులో 90% హెల్మెట్ లేకపోవడం వల్లనే చనిపోతున్నారు। 90% హెల్మెట్ లేకపోవడం వల్లనే జరుగుతున్నారు। ఆ 10% ఎలా అయినా కూడా సరే యాక్సిడెంట్ అవుతుందా, వాళ్ళు ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటున్నారా, చనిపోతున్నారా, అది ఓకే। ఆ 90% ఏదైతే ఉంటుందో వాళ్ళు కొంతమంది, ఆ 90%లో మనం కూడా వస్తాం, ఆ 90లో మనందరం వస్తాం, మీరు వస్తాం, నేను వస్తాం, అందరం వస్తాం। మనకు తెలిసి కూడా తెలిసిన దాన్ని మనం పాటించకపోతే అది మనకు ఏదైనా ప్రమాదం జరిగే అవకాశం ఉంటుంది। మన ఫ్యామిలీ, మన కుటుంబం రోడ్డు మీదకి రాకుండా ఉంటుంది। అర్థమవుతుందా? నేను ఏదేదో వేరే సందర్భంలో వచ్చాను, వేరే టాపిక్ చెప్పానని అనుకోవద్దు। నేను మళ్ళీ ఇంకోసారి వచ్చినప్పుడు మంచి స్పెషల్గా ఇదే టాపిక్ మీద మళ్ళీ మన ఇంతే మాట్లాడుకుందాం। నాకు ఆ తాతయ్యని చూస్తే किसान नगर देहात में CM रिलीफ फंड स्कीम के तहत मंजूर होने वाले CMRF चेकों को कांग्रेस कायदीन ने मुस्तहिकीन के घर जाकर किया हवाले। किसान नगर देहात सतह गुर्बत से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब आवाम को कॉरपोरेट तर्ज के तौर पर मियारी इलाज व मुआवजा फराहम करने के मकसद के तहत हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए CM रिलीफ फंड स्कीम के तहत मंजूर होने वाले CMRF चेकों को कांग्रेस कायदीन ने किसान नगर देहात से ताल्लुक़ रखने वाले दीगर इस्तेफादा कुनिंदगान के घर जाकर CMRF चेकों को हवाले किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की जानिब से इंतखाबात के मौके पर दिए गए वादों को मरहलेवार तरीके से नाफिज करते हुए हुकूमत की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाले
वाले फलाही स्कीमात के सम्राट से बिला लिहाज मजहब व मिल्लत तमाम तबकात से ताल्लुक रखने वालों को फायदा पहुंचाने वाली हुकूमत कांग्रेस होने का इजहार किया। कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार पर आने के फौरी बाद रियासती वजीर आला ए रेवंत रेड्डी की कामयाब तरीन क़यादत में ज़ेरे इल्तवा तरक्याती कामों के लिए न सिर्फ फंड्स की मंजूरी अमल में लाई जा रही है, बल्कि शुरू किए जाने वाले तरक्याती कामों को तेजी के साथ पाए तकमील पर पहुंचाने के लिए अहदेदारान को मुतरिक किया गया है, ताकि हुकूमत की जानिब से तरक्याती कामों के लिए फंड्स की मंजूरी अमल में लाए जाने के बाद शुरू किए जाने वाले तरक्याती कामों को मियारी तरीके से पाए तकमील पर पहुंचाते हुए मुकामी अवाम को राहत पहुंचाई जा सके। सीएम रेवंत रेड्डी की क़यादत में गरीब अवाम को मियारी इलाज व मुआवजा फराहम करने के मकसद के तहत शुरू किए गए सीएम रिलीफ फंड स्कीम के तहत CMRF चेकों की मुस्तहिकीन को फराहमी अमल में लाई जा रही है, जिसकी किसी दूसरी रियासत में नजर नहीं मिलती। और इसके अलावा राजीव आरोग्य श्री की रकम में 10 लाख रुपये का इजाफा करते हुए मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला होने वालों को मियारी इलाज व मुआवजा फराहम किया जा रहा है। कांग्रेस हुकूमत के दौरे इख्तिदार में न सिर्फ शहर बल्कि मंडल से मुतल्लिक़ मौज़ूआत में तरक्याती कामों को तेज रफ्तार के साथ मुकम्मिल करने के लिए फंड्स की मंजूरी अमल में लाई जा रही है, ताकि तरक्याती कामों को तेजी के साथ मुकम्मिल करते हुए मुकामी अवाम को राहत पहुंचाई जाए। इन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से नाफिज किए जाने वाले स्कीमात के फवायद को हर अहले ज़रूरतमंद मुस्तहिकीन को फायदा पहुंचाते हुए अवाम व किसानों के लिए कई मुनफरिद स्कीमात को न सिर्फ शुरू किया गया है, बल्कि इन फलाही स्कीमात के सम्राट से हर एक तबके के अवाम को रास्त तौर पर फैज़याब किया जा रहा है। इन्होंने मजीद कहा कि सीएम रिलीफ फंड स्कीम के तहत ऐसे अफराद इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं जिनका इलाज दवाखाने में जारी है और वो कसीर मिकदार में रुपयों का बंदोबस्त नहीं कर सकते हैं। ऐसे अफराद को सीएम रिलीफ फंड स्कीम के जरिए तिब्बी इमदाद के लिए दरकार अखराजात की अदायगी अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में किसान नगर मौजे के पार्टी सदर टेलर गंगाधर, नायब सदर जय राजा लिंगम के अलावा दीगर ने शिरकत की। हुकूमत की जानिब से बाविखार तरीके से रूबे अमल में लाए जाने वाले रायतु भरोसा इंदिरामा घर, फूड सिक्योरिटी कार्ड, राशन कार्ड, इंदिरामा आत्मीय भरोसा स्कीमात के तहत अहले मुस्तहिकीन को मुस्तफिद करवाने के लिए अहदेदारान फील्ड सतह पर जायजा लेते हुए जमा किए जाने वाले तफसीलात के बारे में कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने की आगाही हासिल। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने चंदूर, अकबर नगर, रुद्रुड देहात का मुशाहिदा करते हुए वहां पर मुकामी अहदेदारों के साथ बात करते हुए फूड सिक्योरिटी कार्ड, राशन कार्ड, रायतु भरोसा स्कीमात से मुताल्लिक़ फील्ड सतह पर लिए जाने वाले जायजे के तहत जमा किए गए तफसीलात के बारे में आगाही हासिल की। कलेक्टर ने कहा कि राशन कार्ड के लिए आने वाली दरख्वास्तों का बारीक बीनी से जायजा लेते हुए खानदान के अराकीन को आधार नंबर के तहत इनके नाम राशन कार्ड में कहीं भी है या नहीं की तस्दीक करने की ताकीद की। और कलेक्टर ने अकबर नगर मुजाफती इलाके में वाक़ जमीनात के अलावा रुद्रुड बस स्टैंड के अकबी हिस्से में 897 से 957 तक मौजूद सर्वे नंबर में जमीनात का फील्ड सतह पर जायजा लिया और किसी भी किस्म की फसलों की काश्तकारी किए बगैर ज़राई के लिए जरूरी जमीनात का इस्तेमाल करना और लेआउट करते हुए प्लाट में तब्दील करने का बगौर जायजा लेने वाले कलेक्टर ने अहदेदारान से मुकम्मल तफसीलात से आगाही हासिल की और कहा कि नाकाबिले काश्त जमीनात की निशानदही करे और क्रॉप बुकिंग भुवन ऐप की मदद से वेरिफिकेशन करने का इजहार किया। इस मौके पर इनके साथ बोधन सब कलेक्टर विकास मेहता, चंदूर MPDO लीलावती, तहसीलदार शांता व दीगर महकमे जात के अहदेदारान मौजूद थे। दाउस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में शिरकत करने के लिए तेलुगु रियासत के विज़राए आला ने स्विट्जरलैंड में वाक़ ज्यूरिच एयरपोर्ट में की मुलाकात। AP CM चंद्राबाबू नायडू, तेलंगाना वजीर आला ए रेवंत रेड्डी ने वहां पर कुछ देर तक मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। दोनों रियासतों में होने वाले तरक्याती प्रोग्रामों के अलावा दीगर सरमायाकारी के बारे में रियासती वजीर आला के दरमियान मशाविरत हुई। CM रेवंत रेड्डी के हमरा तेलंगाना IT वजीर श्रीधर बाबू मौजूद थे। दूसरी तरफ ज्यूरिच पहुंचने वाले CM चंद्राबाबू नायडू की टीम को एयरपोर्ट में यूरोप TDP फॉर्म अराकीन व NRIs की जानिब से इस्तकबाल किया गया। CM चंद्राबाबू नायडू के हमरा मरकजी वजीर राम मोहन नायडू, रियासती विज़रा नारा लोकेश, TG भरत व मुख्तलिफ महकमे जात के अहदेदारान मौजूद थे। इस मौके पर चंद्राबाबू लोकेश के साथ NRI TDP कायदीन ने फोटो खिंचवाई। आज ज्यूरिच में सरमायाकारों से CM चंद्राबाबू की टीम इजलास मुनक़िद करेगी। रियासत में काम करने वाले कारकुनों की तरक्की के लिए उस वक्त के वजीर आला KCR खुसूसी दिलचस्पी के तहत कोशिश करने का BRS वर्किंग प्रेसिडेंट श्री सिल्ला MLA KTR ने किया इजहार।
तेलंगाना भवन में टीआरएस पार्टी लेबर सेक्शन कैलेंडर की नकाब खुशाई के मौके पर केटीआर ने खिताब करते हुए कहा कि केसीआर हमालियों ऑटो ड्राइवर्स के लिए ही नहीं बल्कि हर एक के लिए काम किया है। कारकुनों की परेशानी और मायूसी को हल करने के लिए केसीआर ने ज्यादा कोशिश करते हुए जीएचएमसी में सफाई अमले को 3 बार तनख्वाहों में इजाफा किया और रियासत तेलंगाना की तश्कील अमल में न लाने से पहले उस वक्त की हुकूमत ने आंगनवाड़ी टीचर्स पर जुल्म किया, लेकिन केसीआर हुकूमत ने इन पर मेहरबान होते हुए आंगनवाड़ी की तनख्वाह 4,500 रुपये है तो 13,650 तक इजाफा किया और मिनी आंगनवाड़ी को 2,200 रुपये तनख्वाह है तो 7,800 रुपये किया। और हाल ही में शहर हैदराबाद में आशा वर्कर्स की तई पुलिस की जानिब से बदअखलाकी का मुजाहरा किया गया, तब सीएम रेवंत रेड्डी समेत पुलिस की तरह सलूक करने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि आशा वर्कर्स की तनख्वाह 2,500 रुपये है तो 9,750 तक इजाफा किए और इसके अलावा रोजगार गारंटी में काम करने वाले फील्ड असिस्टेंट की भी तनख्वाहों में इजाफा करने का इजहार किया। హామీలో పనిచేసే ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్లకు 8,000 నుంచి 10,500 చేసిండు. హోమ్ గార్డుల జీతాలు ఇది ఒక్కటి చెప్పాలి. నేను మీకు మొన్న ఎక్కడికో పోయినా, నేను ఒక హోమ్ గార్డు కలిసిండు తమ్ముడు. కలిస్తే ఛాయ్ చేసి ఇచ్చిండు. నాకు ఛాయ్ తెచ్చి ఇస్తే నేను అడిగిన, ఎట్లున్నారు తమ్ముడు అన్న. కళ్ళలో నీళ్ళు పెట్టుకున్నాడు. అన్న 9,000 ఉండే జీతాన్ని 27,000 చేసిండన్న కేసీఆర్ గారు. మాకు దేవుడు అన్న ఆయన. ఎందుకు ఓడగొట్టిరో మరి నాకు తెలియదు, కానీ రాష్ట్ర ప్రజలు మాకు మాత్రం దేవుడు అన్న. ఆయన ఉంటే ఇంకా మాకు లాభం జరుగుతుండే. మేము ఈ పాటికి పోలీసు వాళ్ళు అయిపోతుండే, పోలీసు వాళ్ళతో పాటు మాకు కూడా స్కేల్ వస్తుండే. మాకు 9,000 ఉన్నదాన్ని 3 రెట్లు పెంచి అలా 3 పూటలు అన్నం తింటున్నా అంటే కారణం కేసీఆర్ అన్న అని చెప్పి ఆ పిల్లగాడు కళ్ళలో నీళ్లు పెట్టుకున్నాడు. అట్లాగే ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల గురించి అయితే మీకు తెలుసు. కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల కంటే తెలంగాణ ఉద్యమంలోనే చెప్పిండు కేసీఆర్ గారు, కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల కంటే అత్యధిక పే స్కేలు మీకే ఇస్తా, తెలంగాణ ధనిక రాష్ట్రం, ఖచ్చితంగా మిమ్మల్ని కాపాడుకుంటా కడుపులో పెట్టి అని చెప్పి 73% జీతాలు పెంచి భారతదేశంలోనే అత్యధిక ప్రభుత్వ వేతనాలు ఇచ్చే రాష్ట్రం ఎక్కడ ఉంది అంటే తెలంగాణ రాష్ట్రం అనే విధంగా రాష్ట్రంలోని లక్షలాది మంది 3.5 లక్షల మంది ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు, అదేవిధంగా దాదాపు 12 లక్షల మంది అవుట్ సోర్సింగ్ కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగులకు కూడా పిఆర్సీని వర్తింపజేసిన ఒకే ఒక్క ప్రభుత్వం భారతదేశంలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం మాత్రమే. ఇది చిన్న విషయం కాదు. కాంట్రాక్ట్ అవుట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగులకు ఎన్నడూ పిఆర్సీ వర్తింపజేయలే ఎవరు. కానీ ఒక కేసీఆర్ గారు వచ్చినాక ఇవాళ అది ఆనవాయితీగా మారింది. రేపు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి కూడా ఇయ్యక తప్పదు. అట్లాగే ఇప్పుడే అన్న చెప్పినట్టు కేవలం మనం కార్మికులు అంటే ఏమనుకుంటాం, అసంఘటిత రంగంలో పనిచేసే వాళ్ళు లేకపోతే మన ఫ్యాక్టరీలలో పనిచేసే వాళ్ళు కార్మికులు అనుకుంటాం. हल्दी बोर्ड जिले में कायम किया जाना मुल्क के लिए काबिल फ़ख्र होने का निज़ामाबाद बीजेपी दफ्तर में क़याम अमल में लाए गए मीडिया इजलास से बीजेपी कानून साज असम्बली कायद एलईटी महेश्वर रेड्डी ने किया इजहार। जिला बीजेपी दफ्तर में आइन एजाजी दिवस पर वर्कशॉप मुनक़िद किया गया। इस प्रोग्राम में बाहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर बीजीएलपी कायद एलईटी महेश्वर रेड्डी ने शिरकत करते हुए कहा कि बोर्ड मुल्क के लिए काबिल फ़ख्र है और इसके हुसूल के लिए कोशिश करने वाले एमपीडी अरविंद को मुबारकबाद पेश की और कहा कि 13 माह के दौरान कांग्रेस की हुक्मरानी में रियासत में 13 धांधली के वाक़यात सबूत के साथ बेनकाब करने के बायस भी कोई रद्दअमल जाहिर नहीं हुआ है। हुकूमत की हुक्मरानी मुकम्मल तौर पर बदउनवानी में तब्दील होने का इन्होंने इल्जाम आयद किया और कहा कि कांग्रेस पार्टी खुद के मफाद के लिए काम करती है, लेकिन बीजेपी अवाम की भलाई के लिए काम करने का इजहार किया। इस वर्कशॉप में जिला सदर दिनेश कुलाचारी, कायदीन पोतनकर लक्ष्मी नारायण, श्रवंती रेड्डी, नयालम राजू के अलावा दीगर ने शिरकत की। వివిధ గ్రామాల నుంచి జిల్లా వ్యాప్తంగా వచ్చినటువంటి భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులు, కుటుంబ సభ్యులందరికీ కూడా పేరు పేరు నమస్కారం తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. అదే మాదిరిగా పత్రికా విలేకరులందరికీ కూడా నమస్కారం తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. ముందుగా ఎవరు సాధించలేనటువంటి ఒక గొప్పగా పోరాటం చేసి దేశానికి గర్వకారంగా నిలిచినటువంటి ఈరోజు పసుపు బోర్డు నిజామాబాద్కి సాధించినటువంటి పార్లమెంట్ సభ్యులు ధర్మపూర్ అరవింద్ గారు, వారి వెంట ఉన్నటువంటి వారి మద్దతుగా వాళ్ళకి నిలిచినటువంటి నాయకులందరికీ కూడా నేను మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఎన్నో సంవత్సరాలు వారు పోరాట సందర్భంగా చాలామంది ఇది సాధ్యమే కాదు, ఇది రానే రాదు అన్నట్టుగా ప్రతిపక్షాలు మనం విమర్శ చేసినాయి. పట్టు వీడకుండా వారు ఎక్కడ
అవకాశం ఉంటే అక్కడ తన గొంతు విప్పి ఈ నిజామాబాద్కి గర్వకారణమైనటువంటి ఈ పసుపు రైతులకే కాదు, ఈ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి, అన్ని ప్రాంతాల్లో ఉత్తర తెలంగాణతో పాటు అన్ని ప్రాంతాల్లో పసుపు పండించేటువంటి రైతులందరికీ కూడా ఉపయోగపడే ఒక గొప్ప పసుపు ఓటిని సాధించడమే కాకుండా ఒక రైతు బిడ్డకు దానికి ఆ పెద్దపీట వేయడం కూడా నేను వారికి అభినందన తెలియజేస్తా ఉన్నాను. మరి ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి నన్ను నిజామాబాద్కి పంపడం జరిగింది. प्रजावाणी के तहत मौसूल होने वाले दरख्वास्तों को इससे मुतल्लिका अहदेदारों के साथ जायजा लेते हुए फौरी तौर पर हल करने का जिला कामारेड्डी कलेक्टर आशीष संगवान ने किया इजहार। जिला कामारेड्डी कलेक्ट्रेट में प्रजावाणी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर कलेक्टर आशीष संगवान ने कहा कि जिले में अवाम मुख्तलिफ मसाइल पर प्रजावाणी के तई अपनी शिकायत हवाले की है। इस दरख्वास्तों से मुतल्लिक अहदेदारान फौरी तौर पर जायजा लेते हुए कार्रवाई करने की ताकीद की। आज इनेकाद अमल में लाए गए प्रजावाणी में जमीन के मसाइल, रायतू भरोसा देहा से मुतल्लिका मसाइल के अलावा दीगर कुल मिलाकर 118 दरख्वास्तें दाखिल की गई है। कलेक्टर ने कहा कि आज मुनक्किदा प्रजावाणी में मौसूल होने वाली दरख्वास्तों का जायजा लेते हुए इस दरख्वास्त दहिंदगान को इत्तला देने की ताकीद की। इस प्रजावाणी में एडिशनल कलेक्टर वी विक्टर, डी श्रीनिवास रेड्डी, आरडीओ रंगानाथ राव, जेडपी सीईओ चंदर के अलावा मुख्तलिफ महकमे जात के अहदेदारान मौजूद थे। निजामाबाद रूरल एमएलए कैंप दफ्तर पर एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी ने मुस्तहिकीन में कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक चेकों की तकसीम। निजामाबाद रूरल एमएलए कैंप दफ्तर में एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी ने हुकूमत की जानिब मंजूर शुदा कल्याणा लक्ष्मी व शादी मुबारक चेकों की पड़कल, मुनीपल्ली, कलीगोट, चक्रानपल्ली देहात के मुस्तहिकीन को चेकों की फराहमी अमल में लाई गई और इस सीएम रिलीफ फंड स्कीम के तहत मंजूर होने वाले सीएमआरएफ चेकों को इस्तेफादा कुनिंदगान को हवाले किया और कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाही स्कीमात के सम्राट से तमाम तबका से ताल्लुक रखने वाले अवाम को रास्त तौर पर फैज़याब करने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि आज हुकूमत की जानिब से मंजूर होने वाले कल्याणा लक्ष्मी व शादी मुबारक चेकों की मुस्तहिकीन में फराहमी अमल में लाने का इजहार किया। रियासत तेलंगाना हुकूमत के अहकामात के मुताबिक 21 तारीख से नए राशन कार्ड के लिए वार्ड सभा को मुकम्मल मनसूबाबंदी के तहत इनेकाद करने की म्युनिसिपल कमिश्नर राजू ने अहदेदारों को की ताकीद। आरमूर शहर में वाक़े म्युनिसिपल दफ्तर में नए राशन कार्ड की मंजूरी के लिए इनेकाद अमल में लाए जाने वाले वार्ड सभा पर अहदेदारान से इजलास मुनक़िद किया। इस मौके पर कमिश्नर राजू ने वार्ड सभा में तबादले ख्याल करने के उमूर के बारे में अहदेदारों और वार्ड अहदेदारान को आगाही फराहम की और कहा कि वार्ड सभा में दरख्वास्तें आने की सूरत में कबूल करते हुए अहले मुस्तहिकीन की शनाख्त करने की ताकीद की। इस इजलास में सैनिटरी इंस्पेक्टर गजानन, टाउन प्लानिंग अहदेदार अंजी नीलू, म्युनिसिपल अहदेदारान के अलावा दीगर ने शिरकत की। అప్రూవల్ చేసిన లిస్ట్, వెరిఫికేషన్ చేసిన లిస్ట్ అది కూడా వార్డ్ వైజ్ చేసేసి మీకు ఇప్పుడు మీకే ఇస్తాను. ఎవరైతే ఇప్పుడు వార్డ్ వెరిఫికేషన్ ఆఫీసర్ ఉన్నారో మీకు కూడా ఇస్తాను. దీంట్లో కొన్ని సేమ్ ఉండొచ్చు, ఆల్రెడీ ఆ లిస్ట్లో ఈ లిస్ట్లో ఉన్న వాళ్ళ పేర్లు మ్యాచ్ అవ్వచ్చు, మ్యాక్సిమం మ్యాచ్ అవుతాయి. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరు కొత్త రేషన్ కావాలనుకున్న వాళ్ళు ఇక్కడ చేస్తాం, అక్కడ చేస్తాం, ప్రజాపాలన కూడా చేస్తాం. ఇంకోటి ప్రజాపాలనలో కూడా మనము వార్డ్ వైజ్గా లిస్ట్ తయారు చేసినాం, ఆ లిస్ట్ కూడా ఇస్తాము. మన ప్రజాపాలనలో కూడా వీళ్ళు చేశారు, వీళ్ళకి సంబంధించిన కూడా లిస్ట్ మన దగ్గర ఉందని చెప్పేసి మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఈ మూడు లిస్టులలో ఎవరైనా పేరు రాకపోతేనే వాళ్ళ सीपीएम की चौथी रियासती महासभा को कामयाब बनाने की सीपीएम डिवीजन सेक्रेटरी वेंकटेश ने की अपील। आरमूर शहर में वाक़ई सीपीएम दफ्तर में महासभा से मुताल्लिका पोस्टर की रस्म इजराई अमल में लाई गई। इस मौके पर डिवीजन सेक्रेटरी वेंकटेश, शहरी सेक्रेटरी एल्लैया ने कहा कि इस माह की 25 तारीख से 28 तारीख तक संगारेड्डी में सीपीएम की चौथी रियासती महासभा का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। लिहाजा कायदीन, कारकुनान, दानिशवरान, तुलबा तंजीम के कायदीन कसीर तादाद में शिरकत करते हुए कामयाब बनाने की अपील की। इस प्रोग्राम में सीपीएम कायदीन भूमन्ना व दीगर ने शिरकत की। 25 నుంచి 28వ తారీఖు వరకు సంగారెడ్డి పట్టణంలో జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఈ మహాసభల్లో గత 3 సంవత్సరాలుగా చేసినటువంటి పోరాటాలను సమీక్షించుకొని రేపు రాబోయేటటువంటి భవిష్యత్తు కార్యాచరణ ఈ మహాసభలో రూపొందించుకోవడం జరుగుతూ ఉంది. 25వ తారీఖు నాడు భారీ బహిరంగ సభ సంగారెడ్డి పట్టణంలో జరుగుతూ ఉంది. ఈ బహిరంగ సభకి పోలిట్ బ్యూరో సభ్యులు బివి రాఘవులు, ప్రకాష్ కరత్, తమ్మినేని వీరభద్రం గారు ముఖ్య నాయకులు హాజరవుతా ఉన్నారు. ఈ మహాసభలకి పార్టీ సభ్యులు, కార్యకర్తలు, మేధావులు, రైతులు, విద్యార్థులు పాల్గొనాలని చెప్పేసి విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. ప్రభుత్వము గత 13 నెలలుగా इख्तिताम से खबरें नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर।
दावोस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में शिरकत करने के लिए तेलुगु रियासतों के विज़राए आला हुए रवाना। स्विट्जरलैंड में वाक़ ज्यूरिच एयरपोर्ट में एपी सीएम चंद्रबाबू नायडू व तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी ने की मुलाकात। बालकोंडा के कब्रिस्तान अराजी पर शरपसंदों की जानिब से की गई शरअंगेजी, मुसलमानों की जानिब से किया गया पुरजोर एहतजाज। मजलिसी कायदीन ने एसीपी से मुलाकात करते हुए की नुमाइंदगी। रियासत में काम करने वाले कारकुनान की तरक्की के लिए उस वक्त के वजीर आला केसीआर ने काफ़ी कोशिश की। हैदराबाद में वाक़ तेलंगाना भवन में बीआरएस लेबर सेक्शन कैलेंडर की नकाब कुशाई। बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर का खिताब। हल्दी बोर्ड जिले में क़याम किया जाना मुल्क के लिए काबिल फ़ख्र होने का। निज़ामाबाद बीजेपी दफ्तर में क़याम अमल में लाए गए मीडिया इजलास से बीजेपी कानून साज असम्बली कायद एलईटी महेश्वर रेड्डी ने किया इजहार। हुकूमत की जानिब से बाविखार तरीके से रूबे अमल में लाए जाने वाले 4 नए स्कीमात मुस्तहिकीन तक पहुँचाए। चंदूर, अकबर नगर, रुद्रुर देहातों में फील्ड सतह पर जारी कामों के तरीक़ेकार का कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने लिया जायजा। सीएमआरएफ कल्याणा लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीमात गरीब आवाम के लिए तोहफा। निजामाबाद रूरल एमएलए कैंप दफ्तर में जकरान पल्ली मंडल के मुस्तहिकीन को रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी ने चेकों को किया हवाले। प्रजावानी के तहत मौसूल होने वाले दरख्वास्तों को इससे मुताल्लिक़ा अहदेदारान जायजा लेते हुए हल करे। कामारेड्डी में मुनक़िदा प्रजावानी प्रोग्राम में कलेक्टर आशीष संगवान ने अहकामात किए जारी। नाज़रीन, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।